Now I request the dignitary in the dais to kindly lay the wreath at the cenotaph here. Sir. They'll be followed by General V.K. Chaturvedi, who will be laying on behalf of all senior citizens and veterans. May I start, sir? Once again, please sit down. Please sit down, please sit. Good afternoon. Once again, Shri Jagat Prakash Nadda ji, Member Parliament, Honorable National President, Bharatiya Janata Party, Shri Arun Singh ji, Member Parliament, National General Secretary, Bharatiya Janata Party and Headquarter in charge, Veer Naris,
Gallantry Award medal holders, and highly revered veterans, distinguished guests, ladies and gentlemen. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा. I consider it my proud privilege and great honor to welcome such highly distinguished national luminaries on the dais and off the dais both, and in the respective fields, Veer Naris in Kargil War and other operations, Gallantry Award medal awardees, war heroes from the Army, Navy and Air Force, and other paramilitary forces also. Some of them are here, otherwise we had called them, but because of certain constraints, they could not come. And other distinguished guests and veterans. I extend a very warm welcome to Chief Guest, Shri Jagat Prakash Nadda ji, Member Parliament and Honorable National President, BJP, a highly popular leader, Sino-Sar of political arena, most respected leader of masses and environmentalist. There was a zero carbon during his time in Himachal Pradesh, many of you might be knowing. Founder of the biggest national protection scheme in the world. That was a health protection scheme, Ayushman Bharat, as you know, which is a part of social security. India never had such a scheme. If I may say so, he is the field marshal of the largest army of the party workers in the world, having more than 18 crore party members, which is also nearly equals the population of 8 to 9 nations. If we take all our commands, eastern, western, southern, and southern world, even then the strength of his army is more than our army. His love and affection for both men in uniform and we veterans and their families is well known. In spite of very busy schedule and ongoing parliament session, he kindly agreed to request and to be the chief guest and preside over the Kargil Divas Samaro and honor the national treasure of Veer Naris and gallantry medal awardees during Kargil and other operations. We are grateful to you, sir, for your graciousness. I extend a hearty welcome to Sri Arun Singh ji, Member Parliament and General Secretary, Headquarter in charge. He was a guiding force behind this event. A very warm welcome to Sri V.S. Santoshi, who was about to come in absentia. I extend a very hearty welcome to all our Veer Naris, including President Vijay Veer Awas, RWA, Dwarka, Srimati Urmila Ghildayal, who coordinated at every step to ensure their maiden presence in this complex and for this program. We are grateful and honored to each one of you for your presence, please. If any inconvenience is caused, forgive us. I extend a very warm welcome to all Gallantry Award winners, veterans of the various operations, namely Lieutenant General V.K. Chaturvedi, Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, and Sena Medal Gallantry. He is also the National President, Akhil Bharati Purv Sainik Seva Parishad. Air Vice Marshal H.P. Singh, Veer Chakra, and VSM. And Colonel R.V. Ram, Sena Medal Gallantry. We would like to welcome each one of you by name, but due to constraint of time variable, I must mention only few names, and all those names which are not mentioned, take it that I have mentioned it. And you are very visible here. Your presence is felt by us. Shri Adesh Gupta ji, Adhyaksh, Delhi Pradesh BJP. Shri Anil Baluni ji, Member Parliament. Shri Mahend Pandey ji, Shri Vikas Pritam, and General Lumba is here? No. General R.M. Mittal, former DG Border Roads. General Sunit Kumar, DG IT, ex-IT, and AVM O.P. Tiwari. Then we have got Honorary Brigadier Dr. Arvind Lal, Padma Shri Awardee. Mrs. Rashmi Mishra, wife of Brigadier Rakesh Mishra, just met me today. Her husband is in Northern Command, and his field regiment had fired on Pakistani soldiers. He himself was there. She is also a very active member of Mahila Morcha. Colonel Devendra Shahrawat,
Akhil Bharati Purv Sainik Seva Parishad, and Colonel Dayashankar Dubey. He is the convener of the Purv Sainik Prakash, UP State, and Colonel Harshvardhan Sharma, National Vice President, Veteran India. Ladies and gentlemen, we have assembled here for what? Not to celebrate the war, but the great victory we achieved at a great cost. War is never celebrated. War is painful process, and winners or losers as well of the term in terms of precious lives lost and the country's economy which suffers. But victory is at the end product indicator. As in the management we say, it is the indicator, end product which matters. And we celebrate the victory and pay tribute to those who fought fiercely and pay homage to those martyrs who laid down their lives for the sovereignty, suzerainty of the country. The victory came at a very high price. The official death toll on Indian side has been 527 killed in action, 1363 wounded, one pilot flight lieutenant Nichikati was captured but later released. But again, one pilot, squadron leader Ahuja, when he ejected from MiG, when his MiG was shot, he was brutally killed by the Pakistanis. Normally, under Geneva Convention, we don't kill, and it is a sin, but they did it. As per reports in Pakistan press, nearly 3,000 to 4,000 Pakistani army soldiers were killed. So the ratio was very high. Hence, we assembled here to commemorate the great victory, which was possible due to sacrifices made by the Indian Armed Forces, soldiers in the historic Kargil battle between India and Pakistan on Kashmir's Kargil district, lasting for more than 2 months. A war India had to fight for more than 2 months, from 3rd May to 26 July. We got back every inch of our territory by recapturing all the Indian posts occupied by Pakistan surreptitiously in rugged mountains and inhospitable terrains at the height of 14 to 17,000 feet, where the temperature has been less than minus 20 to 30. It is not a very comfortable zone. Since then, July 26 is observed annually to commemorate the sacrifices made by soldiers in the war all over the country. It is not only in this place, all over the country we celebrate this. We recollect the historic battle scenes to our youth as an inspiration. That's why we got our NCC boys and girls here. That is a part of inspiration. And they will listen to us, and they're all aspiring to be in the NDA and IMA. The celebration of Kargil victory will not be complete without mention of few famous battles fought at the heights of 14 to 16, 17,000 feet, which has got no parallel in the history of world, except 1 or 2 like Haifa. The Battle of Tololing, the Battle of Tiger Hill. The Tololing Peak is a dominant position overlooking the strategic Srinagar-Leh highway, and that is what they wanted to cut off. They wanted to cut off Srinagar, Kashmir, and they wanted to cut off Leh and Ladakh. Their aim was. But somehow their nefarious designs did not succeed. During the whole conflict, our armed forces never crossed the LOC. The PM's direction at that time was, never don't cross the LOC, otherwise they had a plan to go across. But being in our territory, as per the late Atal Bihari Vajpayee, the then PM, our MiG-27, Mirages 2000, they fired so heavily that Pakistanis got nervous, and this constraint put by late Prime Minister put tremendous international pressure, and when Bill Clinton, then US President, forced Pakistan to withdraw the troops. Even China supported India, very surprisingly, and G8 nations also, that they must withdraw. Normally, they don't support us on such issues. A number of officers and soldiers got gallantry awards. 4 Paramveer Chakras, 11 Mahavir Chakra were awarded, including famous Grenadier Yogen Singh Wado, PVC, who is still alive. Captain Vikram Batra, Paramveer Chakra, famous, who is known for Dil Mange More, that was his call sign. And Lieutenant Manoj Kumar Pandey, Paramveer Chakra posthumously. From 1st 11 GR, I happened to be the medical officer of that unit, 1st 11 GR, during the war.
Rifleman Sanjay Kumar, and 13 Jack Rifle Paramveer Chakra. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji once said, while attending the commemorative function for Kargil Divas, winning the Kargil was a testament of India's strength, patience, sanctity, and discipline. It was the victory of every India's expectations. We wanted to get back our territory, we got it back. Having reduced the subject of genesis of Kargil war and significance of Kargil Divas, today's distinct function, I will stop here. Now I request our chief guest, Shri J.P. Nadda ji, to give his Udbodhan, please. आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे हेडक्वार्टर्स के जनरल सेक्रेटरी सम्माननीय अरुण सिंह जी, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, मेजर जनरल एम श्रीवास्तव जी, जो हमारे तरफ से हमेशा कारगिल दिवस को कोऑर्डिनेट भी करते हैं और हमारे सैनिक भाइयों के साथ और हमारे आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी संपर्क रखते हैं, हमारे सभी वरिष्ठ यहाँ आज उपस्थित आर्मी के सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स, डेकोरेटेड सोल्जर्स, डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर्स और हमारी माताएं, बहनें, बुज़ुर्ग, मेरे नौजवान साथी, आज हम सब लोग कारगिल के विजय दिवस के अवसर पर यहाँ पर एकत्र आए हैं और हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर साल कारगिल दिवस को मनाती है विजय दिवस के रूप में, और ये कार्यक्रम 11 अशोक रोड से लेकर के सभी पार्टी के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता है। ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम में श्रीवास्तव जी ने आने का निमंत्रण दिया और मैं भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हूँ। हमारी इच्छा थी कि हमारे भारत के रक्षा मंत्री आए, लेकिन पार्लियामेंट होने के कारण और पार्लियामेंट के बिजनेस होने के कारण उनका वहाँ से निकल पाना थोड़ा कठिन था। हमारे जनरल वीके सिंह जी, उन्होंने भी आना था, लेकिन आज उनकी रोस्टर ड्यूटी है, तो सबके तरफ से प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेवारी मेरी ही रही, तो मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। यह दिवस हम लोग एक तरीके से ब्रेवरी के दिवस, बहादुरी के दिवस के रूप में मनाते हैं और हम अपने आप को समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं उन वीर जवानों को जिन लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ देश की सीमाओं की रक्षा की, और कारगिल उसका जीता जागता प्रमाण भी है और उसका एक तरीके से कहा जाए तो सिंबल है, वह एक सिंबल के रूप में भी देखा जाता है। और आज के दिन हमने विजय घोषित किया था, इसलिए हम विजय दिवस के रूप में 26 तारीख को मनाते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे वीर जवानों ने बड़े विपरीत परिस्थितियों में कारगिल की लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा था और हम हज़ारों फीट नीचे खड़े थे, और वह बहुत चुपके से, चालाकी से आकर के उसने वहाँ पर पोजीशंस ली थी। ऐसे में लड़ना बड़ा कठिन होता है। आप सब तो फौज के हैं, आपको हम स्ट्रैटेजी बताएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक लेमैन की तरह, एक बड़े अनजान व्यक्ति के तरीके से भी हम जानते हैं कि ऊपर से मारा हुआ पत्थर बड़े आसानी से नीचे आता है, नीचे से मारी हुई बंदूक भी दूर तक कहाँ जा पाती है, इसकी दिक्कत रहती है। लेकिन हमको यह भी मालूम है कि किस तरीके से वो लड़ाई लड़ी गई, और विपरीत परिस्थिति में नीचे से जाकर ऊपर के लोगों को अटैक करते हुए वहाँ पर तिरंगा फिर से फहराया गया। इस बात को हम लोग जानते हैं। ये पूरा मैं नम्र होकर के उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि भी देता हूँ, याद भी करता हूँ इस विजय दिवस पर, क्योंकि यह विजय दिवस संभव नहीं था अगर
उन्होंने अपनी जान की आहुति नहीं दी होती और देश के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अब वो शहीद हुए, हम सब लोग उनके प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ और सुमन के साथ श्रद्धांजलि भी देते हैं। और हम यह भी बताना चाहते हैं कि वह अकेले नहीं हैं, वह परिवार के नहीं थे, वो सारे देश के थे, वो 130 करोड़ की जनता के दिलों में बसे हुए हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको देखना चाहिए। जैसा कि श्रीवास्तव साहब ने बताया कि मई 4 से लेकर के 26 जुलाई तक की ये लड़ाई लड़ी ली गई। इस लड़ाई के कई रूप हैं, कब डिक्लेयर हुआ वॉर, किस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ा फिर पीछे हटा, फिर किस तरीके से हम लोगों के एयर ऑपरेशंस हुए, फिर किस तरीके से हमने टाइगर हिल जीता और एक के बाद एक हम जीतते चले गए। वो सारी कहानी हमारी एक 4 तारीख मई से लेकर के 26 तारीख तक की एक विजय गाथा है, जिस गाथा को हम सब लोग जानते हैं, उसको हम पहचानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इसमें बहुत से योद्धाओं ने अपने शौर्य का बहुत अच्छा परिचय दिया और उन्होंने जान को जोखिम में डाल करके दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। और उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम हो, बाकियों का नाम हो, सब लोगों को हम याद करते हैं। इसी वॉर में परमवीर चक्र के रूप में विक्रम बत्रा को जानते हैं, हम संजय कुमार को जानते हैं और पाकिस्तान को एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने का काम इस कारगिल वॉर में किया है। तो आज हम विजय दिवस में उन सारी बातों को याद भी करते हैं और हम ध्यान में लेकर के कार्य में जुटते भी हैं। मित्रों, जब आप लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हैं और यहाँ हम विजय दिवस मना रहे हैं, कई बार हम लोग यह कहते हैं और ये कहना सही भी है कि डिफेंस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, ऐसा लोग कहते हैं। इन सर्विस तो ठीक है क्योंकि यूनिफॉर्म फोर्स है और यूनिफॉर्म फोर्स को एक डिसिप्लिन तरीके से उनका जीवन और उस तरीके से वो अपने जीवन में रहते हैं, ये बात सही है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि कौन से ऐसे नेता और ऐसी पार्टी है जो देश की सुरक्षा को कितनी अहमियत देती है और उसको कितना प्रायोरिटाइज करती है और किसके आने से फर्क पड़ता है और किसके जाने से फर्क पड़ता है, इस बात को भी समझना चाहिए। मेरा परिवार डिफेंस का है। माय अंकल वाज दी 736th Indian Army officer. He fought during the World War II, and after that when the Indian Army came, he became an officer. और उसके बाद हमारे सारे रिश्तेदार सभी फौज में हैं, हम उनके साथ मिलते भी रहते हैं। हम फ़र्क इस तरीके से जानते हैं कि एक समय था कि बॉर्डर पर गोली चलती थी और एक समय था कि वहाँ से पोस्ट से सिपाही लांस नायक वहाँ से रिपोर्ट करता था अपने ऑफिसर को पीछे कि वहाँ गोली चल रही है। और ये ऑफिसर वहाँ से रिपोर्ट करते थे उधमपुर को, या मुझे अब वो नगरोटा को रिपोर्ट करते थे। नगरोटा रिपोर्ट करता था चंडी मंदिर को, चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था दिल्ली हेडक्वार्टर्स को, और दिल्ली हेडक्वार्टर्स 10 दिन बाद बोलता था बताते हैं। ये सिचुएशन भी हमने देखी है। और आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं तो कहा गया है कि जहां शक हो वहीं गोली चला दो, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ये फर्क है, ये हमको समझना चाहिए कि नेतृत्व के बदलने का असर क्या होता है। क्या मोराल होता होगा उस लांस नायक का जो बंदूक लेके के खड़ा है और जिसके पास असला है, जिसकी ट्रेनिंग हो रखी है, उसके आपने हाथ बांध रखे हैं और वह बेचारा दिल्ली से कमांड मांग रहा है और 10 दिन बाद कहा जाता है वेट वी विल टेल यू। क्या स्थिति होती होगी। मैं बादामी बाग के आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में रहा हुआ आदमी, मैंने देखा है इन्फिल्ट्रेशन के हाई टाइम में 1989 में लाल किले पर
लाल चौक पर जब झंडा फहराना था तो उसके इनकॉग्निटो मैपिंग करने के लिए मैं गया था। और उस समय जब मैं बादामी बाग के कैंप में गया था तो वहाँ हर 30 या 40 मिनट बाद एक हेलीकॉप्टर आता था, लैंड करता था उसके फील्ड में। उसमें से पेशेंट उतरता था, अगर उसने हरा कंबल पहना हुआ है या लाल कंबल लगाया हुआ तो जिंदा है। दूर से अगर उसने व्हाइट है तो इसका मतलब बेचारा शहीद हो चुका है। यह स्थिति भी मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैंने वो भी स्थिति देखी है कि एक टेररिस्ट इस देश में आने के बाद 2.5 साल तक वह यहां पर उत्पात मचाता था। आज किसी भी टेररिस्ट की भारत में 1 से 1.5 सप्ताह से ज्यादा उसकी उम्र नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। ये वही फौज है, ये वही कर्तृत्ववान लोग हैं, लेकिन नेतृत्व अगर ठीक नहीं होता है तो 2.5 साल तक उत्पात मनाता है, और जब नेतृत्व सही होता है तो 2.5 हफ्ते में शांत कर दिया जाता है। यह भारत फौज की कमाल है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं, अब मैं इस समय कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, OROP का विषय तो 1971-72 का है, जो ऑनेस्टली प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कमिट किया उसको करके दिया, लेटर और स्पिरिट में करके दिया, मेन स्ट्रीमिंग करने का प्रयास हुआ है। अगर उसी तरीके से हम देखें तो बजट में इसके दृष्टि से देखें तो 2012-14 तक इंडियन आर्मी का बजट जो था वो 1,47,000 था, आज वो 4,78,000 बजट हो गया है। और इतना ही नहीं है, इसमें से 1.3 लाख करोड़ हैज बीन स्पेशली केप्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एज फार एज इक्विपमेंट इज कंसर्न, एज फार एज द स्ट्राइकिंग रेट इज कंसर्न, स्ट्राइकिंग कैपेसिटी इज कंसर्न, उस पर खर्च हो रहा है। उसको भी हमको समझना चाहिए, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और राष्ट्रीय सुरक्षा हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, चाहे वो नागा अकॉर्ड हो, चाहे वो बोडोलैंड अकॉर्ड हो, इंटरनल सिक्योरिटी का विषय हो, इसमें भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत इनिशिएटिव लेकर के इनको भी सेटल किया है, ताकि हमारे फौज के लोग वह एक्सटर्नल सिक्योरिटी के काम में, बॉर्डर की सिक्योरिटी में लग सकें और इंटरनल प्रॉब्लम्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए, और इंडियन आर्मी ने उसको बखूबी निभा करके दिया है। कल हमारे संगठन मंत्री वो श्रीनगर गए हुए थे, जम्मू कश्मीर, वहाँ से लौट के आए तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि बस खबर मिलनी चाहिए, इंडियन आर्मी 8-9 दिनों के अंदर कॉर्डन करके टेररिस्ट को समाप्त कर देती है, सिर्फ खबर मिलनी चाहिए। ये फर्क है। दिस इज द ग्राउंड सिचुएशन which we have to understand how policy makers when make a difference, किस तरीके से नीति बनाने वाले लोग परिवर्तन लाते हैं जीवन में, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। जहाँ तक हम सीमांत विकास के उत्सव की बात करते हैं, मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। अभी मैं लगभग पिछले महीने अटल टनल देखने गया था, और मैं जब अटल टनल की बात करता हूँ तो हिमाचल का रहने के कारण मैं जानता था कि अक्टूबर महीने से लेकर मई महीने तक क्या बोलते थे, लाहौल बंद है जी, लाहौल बंद है, ले बंद है जी, रास्ता नहीं है। और कितने घंटे लगते थे जब चलता भी रास्ता होता था। एक तो वो रास्ता नहीं होता था, वो नहरी होती थी, क्योंकि बर्फ इतनी गलती रहती थी कि वो पानी सड़कों से ही बहता रहता था। और 5.5 घंटे लगते थे मनाली से लेकर के सिसु पहुंचने में। आज मैं उस टनल को क्रॉस करके 9.5 किलोमीटर की टनल, अटल जी ने उसका शिलान्यास रखा था, और मुझे याद है, देखिए कैसे फर्क पड़ता है। अटल जी मनाली आए, बात है 2004 की, बीमार होने से पहले। उन्होंने बोला कि मैंने 1998 में वो शिलान्यास रखा था, उसका क्या हुआ। मैंने कहा बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है। तो अटल जी ने उस समय कहा था, वो जो मैंने पत्थर रखा है वो मेरे दिल पर पत्थर है, क्योंकि उस समय की यूपीए सरकार उस पर काम नहीं कर रही थी। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो फिर से काम शुरू हुआ,
तीव्र गति से काम शुरू हुआ और आज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न टनल 9.9 किलोमीटर की बनकर के तैयार है। और इंडियन आर्मी के लिए 5.5 घंटा बचता है, यानी मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम मनाली अर्ली मॉर्निंग एंड ले यू आर देयर इन द इवनिंग। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की है और यह रीइंफोर्समेंट किया गया है। नहीं तो श्रीनगर के रास्ते से जाओ, ऊपर कारगिल के द्रास के सेक्टर में वहाँ की समस्याओं को देखो और तब जाकर के कहीं हम लेह लद्दाख पहुँचते थे। आज हमें खुशी है आपको बताते हुए कि लगभग 14,450 मीटर्स की ऑल वेदर ब्रिजेस बन चुके हैं। अब आप लोगों ने पहाड़ में देखा होगा हमारे यहाँ ब्रिज कैसे होते थे, आप ही लोग बनाते थे, आर्मी वालों का ही ब्रिज होता था। एक ब्रिज होता था, एक हरी झंडी लेकर के इस तरफ खड़ा होता था, एक लाल झंडी लेके उस तरफ खड़ा होता था। इधर से कॉन्वॉय निकलता था, 22 गाड़ियाँ इधर से निकलेंगी, लगभग 40 मिनट लगता था वो हिलता 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 जाता था और फिर वो उस पार जब पहुंचता था तो फिर उधर से दूसरा कन्वॉय चलता था, वो भी पुल को हिलाता हिलाता निकलता था। आज ऑल वेदर रोड 14,450 मीटर्स की बन करके तैयार है और डबल लेन है। यू कैन क्रॉस एट द स्पीड ऑफ 60 विदाउट वेटिंग। यह आज होकर के हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से बॉर्डर पर अभी पिछले 6 सालों के अंदर 4,764 किलोमीटर ऑल वेदर रोड बन गया है और ताकि बॉर्डर की रक्षा की जा सके और उसको हम पूरी की पूरी ताकत। अभी ये जो स्टैंड ऑफ हुआ, इसमें जो इंडियन आर्मी इतने तेजी से वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर उन्होंने एकदम आर्मी ने सामने सारी चीज़ों को किया और सारी फोर्स वहाँ जाकर के डिप्लॉय की गई। ये सारा इसलिए हो पाया क्योंकि वो रोड जो बने हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसको हम कहते हैं विद इन 4 days ऑल 3 टनर्स कुड रीच द स्पॉट। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई, इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी 73 इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स प्लान की जा रही हैं। 73 रोड जो हैं वो चाइना के इसलिए की जा रही है ताकि हमारा ब्रिस्क मूवमेंट हो सके, ट्रुप्स और वेपन्स का इसकी भी तैयारी हो रही है। 44 स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस ऑन सेंसिटिव एरियाज, इसका काम शुरू हो गया है। उसी तरीके से दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड जो है ये बीआरओ ने कंप्लीट की है। इसको 19 साल लगे हैं और 19 साल में ये मोदी जी के टाइम के जो 6 साल हैं इसमें 70% वर्क पूरा हुआ है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, इस तरीके से काम हुआ है। अभी 45 किलोमीटर सिवॉक रैंगपो रोड, ये वेस्ट बंगाल और सिक्किम का सिंगल ब्रॉड गेज लाइन बन रहा है, इस पर भी काम तेज़ी से चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज, वह भी चेनाब पर बन रहा है। तो ये सारे काम इंडियन आर्मी को बॉर्डर्स पर स्ट्रेंथन करने के लिए किए जा रहे हैं, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं पार्लियामेंट में 2012 से हूँ, मैंने कांग्रेस का भी रिजीम देखा है। कांग्रेस की फिलॉसफी थी नो डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन, कोई डिसीजन मत लो, और सौदेबाजी करनी है तो देयर शुड नॉट बी मिशन, देयर शुड बी कमीशन। यही लेकर के चलते रहे। अच्छा नहीं लगता है कि हम डिफेंस के बारे में ऐसी बात करें, लेकिन इसी तरीके से इन लोगों ने जिस तरीके से सरकारें चलाई, आज के कोट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर्स ने उस समय क्या कहा है और कि हम कैसे क्या सोचते थे, क्या करते थे, सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स का बेड़ा भारत में मौजूद है, इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से 28 अपैचे अटैक हेलीकॉप्टर्स ये भी मौजूद है, 15 चिनूक चॉपर्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स फ्रॉम इजराइल MRSAM, इसको भी ये भी हमारे यहाँ मौजूद है। 145 अल्ट्रा लाइट हाउवेसर हैं, वो भी हमारे यहाँ मौजूद है। 100 वज्र आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। 1.86 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स। पहले हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स बाहर से लेते थे, आज इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। अपनी तो सेल्फ सफिशिएंसी की ही है, लेकिन दुनिया को दे रहा है। यह परिस्थिति खड़ी हुई है। उसी तरीके से सरफेस टू एयर मिसाइल्स के 5 स्क्वाड्रन्स तैयार हुए हैं। मिसाइल ट्रैकिंग शिप और वो भी शिपयार्ड में तैयार हो रहा है, हिंदुस्तान शिपयार्ड में तैयार हो रहा है।
यानी आर्मी को एक अलग ढंग से देखने का नजरिया और उनको प्रायोरिटाइज करना, ये सारे आप सब लोग आर्मी में हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद करेंगे तो सारे के सारी सिंस 80s ये इक्विपमेंट का मॉडर्नाइजेशन ये प्राय रुक सा गया था। And it was speaking on the morals of our fighters, our jawans, our officers, इन सब पर उसका असर पड़ रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद क्विक डिसीजन, बोल्ड डिसीजन, डिसीजन इन द फेवर ऑफ द कंट्री इस तरीके का किया गया। अब FDI 74% कर दिया गया है और हमारे यहाँ घर में इनिशिएट किया गया है ताकि हम इंडिजिनस चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। इस बात को भी हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि लीडरशिप मेक्स अ डिफरेंस। जब कारगिल दिवस था तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब क्लिंटन से मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा समझौता कराओ। और उस समय देश के भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमारी फौजें मोर्चे पर लड़ रही हैं, मैं भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक कारगिल की एक एक इंच की भूमि हमारे जवान नहीं जीत लेते। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है, ये लीडरशिप का डिसीजन होता है जिसको हमको समझना चाहिए और उसको उन्होंने करके दिखाया है। और वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था और मुझे प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का मौका अभी मिला है, पहले भी मैंने काम किया है। हम सब लोग जानते हैं उन्होंने एक प्रधानमंत्री की हैसियत से कहा था कि घर में घुस कर मारूंगा, आपको ध्यान में होगा। और 5 दिन बाद वो जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसने दुनिया को संदेश दे दिया कि इंडिया मीन्स बिजनेस, बिजनेस एंड बिजनेस। किसी से न नजर झुका के बात करेंगे, न उठा के बात करेंगे, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। मित्रों, हम यही कह सकते हैं कि आज जब प्रायोरिटीज़ की बात आती है तो इंडियन आर्मी और भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता, हमारे विरोधी भी ये जानते हैं। नेशनलिज्म इज सिनोनिम टू भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीयता भारतीय जनता पार्टी के कंटेंट है, इसलिए उसको संजो कर रखना, आगे बढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी है। आज मुझे आप लोगों के साथ शामिल होने का मौका मिला है, आप सब लोगों के दर्शन करने का भी मौका मिला है। मैं जानता हूँ भारत बहुत ही खुशनसीब है कि वी हैव गॉट सच डेकोरेटेड सोल्जर्स, सच डेकोरेटेड ऑफिसर्स, और इंडियन आर्मी का एक अपना दुनिया में स्थान है। और वह स्थान सिर्फ वैलर में, फाइटिंग में नहीं है, सिर्फ फाइटिंग में ही नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ इंडियन आर्मी इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड वर्ल्ड ओवर। और हम अपनी ही रक्षा नहीं करते हैं, अपने साथियों की भी रक्षा करते हैं, ये जग जाहिर है। तो ऐसे सभी लोगों को मैं नमन भी करता हूँ, सलाम भी करता हूँ, उनको आदरपूर्वक उनके साथ आज कारगिल दिवस का सौभाग्य मुझे मिला है। आज हमारी बहनें आई हैं जिन लोगों ने अपने पति इसमें शहीद हुए हैं, मैं उनके प्रति भी अपने नमन होता हुआ और नमन करता हुआ आदरपूर्वक उनको हम सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि सारा देश आपके साथ खड़ा है, सारा देश उनको अपना परिवार मानता है। कारगिल दिवस के विजय अवसर पर हम सबको शुभकामनाएं भी देते हैं, विद द recommitment that we will see to it that we will fight to the best and keep the borders safe and keep India as a safe country. बहुत बहुत धन्यवाद। Here comes much awaited moment to honor our Veer Naris, respected Gallantry Award winners in the Operation Vijay, Operation Safed Sagar, and Operation Archid. Now, Chief Guest, Sri Nadda ji, National President and Bharatiya Janata Party, will be honoring them one by one, all Veer Naris, and
Gallantry Award winners are kindly requested to come forward one by one, and he'll honor them. I'll read out the name. Yeah. Srimati Meera Devi, wife of Shaheed Havildar Tam Bahadur Chhetri, Sena Medal Gallantry. श्रीमती नीलम देवी, Srimati Neelam Devi is wife of Shaheed Lance Naik Arun Kumar Singh, 1 Field Regiment, Operation Aprakshak during counterinsurgency operation in the J&K. Srimati Urmila Gildial, wife of Shaheed Major Atul Kumar Gildial, Sena Medal and Bar to Sena Medal posthumously. She is the president of the RWA Veer Nari Awas at Dwarka. Shrimati Pinky Dhyani, Shrimati Pinky Dhyani, wife of Shaheed Rifleman Ansuya Prasad, Veer Chakra. He was awarded Veer Chakra during Operation Vijay Kargil. Srimati Banita Rawat, wife of Shaheed Sipai Bharat Singh, Operation Kargil Vijay. He was martyred during Kargil War in 1999, 1 Naga Battalion. Srimati Beena Devi, wife of Shaheed Ramesh Chand Badola, Aprakshak. Srimati Meenu Devi, wife of Shaheed Sipai Sanjeev Kumar, Operation Rakshak in counterinsurgency operation J&K. Srimati Asha Sharma, wife of Shaheed Nayak Dinesh Chand in Operation Aprakshak in J&K. In counter-insurgency operations. Srimati Rekha Bhandari, wife of Shaheed Nayak Mangat Singh Bhandari, Op Vijay Kargil War 99. He was in 18 Garhwal Rifles, which suffered maximum casualties. They were in the first battalion to go up. Srimati Suresh Devi, wife of Nayak Mahabir Singh,
Aprachak Contingency Operation J&K. Srimati Devyani Devi, wife of Shahid Shivaji Singh, Aprachak in J&K. Now we have got Gallantry Medal 3 awardees here. Colonel R.V. Ram, Sena Medal Gallantry, First 11 Gurkhas. He killed 7 Nagas in encounter. He belongs to 111 GR, as I said. The battalion, both of us were in the war, sir. Air Vice Marshal S.P. Singh. Air Vice Marshal S.P. Singh got Veer Chakra during Kargil War. He is VSM 71 War. He targeted enemy fields which were fully occupied. Then Lieutenant General V.K. Chaturvedi, Param Vishisht Sada AVSM, and got Sena Medal Gallantry Award during 71 war. A big applause for all of them. Now I call upon Brigadier Bhuvanesh Chaudhary to give vote of thanks. उपस्थित सभा को मेरा सादर नमस्कार। कारगिल विजय दिवस भारत के सैन्य इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, ये हम सब जानते हैं, और इसकी अमर गाथा हमारे वीर सेनानियों ने कारगिल की पहाड़ियों में 2.5 महीने से ज़्यादा समय में अपने खून से लिखी थी। आज देश के उन वीर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आयोजित इस पवित्र समारोह में मुझे ये अवसर दिया गया है कि मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करूं। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रखर वक्ता तथा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे परम स्नेही अभिभावक आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हम हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर इसकी अध्यक्षता की। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और आपके द्वारा अपने सारगर्भित वक्तव्यों से हमारा जो उत्साह बढ़ाया गया और हमारा जो मार्गदर्शन किया गया, हम उसके लिए आपके आभारी हैं श्रीमान। माननीय सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, मुख्यालय के प्रभारी आदरणीय श्री अरुण सिंह जी के हम अपना आभार व्यक्त करते हैं और कि इन्होंने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए हर कदम पर हमारा सतत मार्गदर्शन किया। आपका हृदय से आभार है सर। कोविड की महामारी
की परेशानियों के बावजूद हमारे स्नेह निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पधारी सभी वीर नारियाँ, बलिदानी सैनिकों के गौरवशाली पूज्य माता पिता, युद्धों में अपनी वीरता प्रदर्शित करने वाले वीर सेनानियों और पूर्व सैनिकों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और ये बताते हुए हमें गर्व है कि आपकी उपस्थिति से ही इस समारोह की भव्यता है और इसके लिए हम आपके गहनतम हृदय तल से आभारी हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी, पीवीएसएम, एवीएसएम, सेना मेडल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का, कि जिनकी सहायता से यह कार्यक्रम अपनी सफलता को पा सका। हमारा आभार जाता है आदरणीय ब्रिगेडियर एस.सी. सरीन, कर्नल देवेंद्र शेरावत जी, एवीएम एच.पी. सिंह साहब, श्रीमती उर्मिला घेल्डियाल जी, वेटरन वी.पी. वैष्णव जी, वीर आवास अपार्टमेंट द्वारका की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के लिए तथा उन सभी महानुभावों के लिए जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन संभव हो सका। हर समारोह की सफलता के आयोजन में दृश्य पटल के पीछे कुछ मार्गदर्शक महानुभावों का प्रेरणा और मार्गदर्शन की शक्ति होती है। ऐसी ही कुछ विभूतियों और साथियों का आभार प्रकट किए बिना हमारा ये धन्यवाद ज्ञापन अधूरा ही रहेगा। ये महानुभाव जिन्होंने इस आयोजन में पग पग पर हमारा मार्गदर्शन किया, हमें सहायता प्रदान की, वे हैं भाजपा के माननीय राष्ट्रीय मंत्री महामंत्री संगठन आदरणीय श्री वी.एल. संतोष जी, श्री महेंद्र पांडे जी, भाजपा कार्यालय मंत्री श्री अमित मालवीय जी, श्री संजय मयूख जी, श्री विकास प्रीतम जी और श्री रितेश जैन जी। इस समारोह के आयोजन की रूपरेखा बनाने और उसके छोटे से छोटे आयाम पर ध्यान देकर सतत उसके आयोजन में जुटे रहने वाले आदरणीय मेजर जनरल मुनींद्र श्रीवास्तव हमारे आभार के अधिकारी हैं कि उन्होंने ये आयोजन, शानदार आयोजन किया और हमें ये अवसर प्रदान किया। अंत में धन्यवाद करते हैं श्री सीताराम जी का, जिनके नेतृत्व में एनसीसी की टीम ने अपने कठिन परिश्रम और सुंदर परेड संचालन से समारोह की सुंदरता में चार चांद लगाए और इसे सफल बनाया। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी राष्ट्रीय गान के लिए कृपया अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। क्या हुआ? जय जय मातरम मातरम मातरम। आप सभी से निवेदन है कि जलपान के लिए मीडिया कंपाउंड में पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद।